It's 11 o'clock रात के and the thing is I would say welcome back to this brand new video on आज हम लोग बेसिकली ना कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कहेंगे इस सेंस में, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें पहले ही कवर कर ली हैं। तो हम लोग क्या क्या रिवाइज करेंगे, बेसिकली रिवाइज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट्स आता है, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट्स आते हैं और टेरनी ऑपरेटर आता है। ठीक है, और टेरनी ऑपरेटर बेसिकली क्या है, शॉर्ट हैंड तरीका है किसको लिखने का, एल्स इफ स्टेटमेंट्स को लिखने का। ठीक है, एंड हम लोग अलग ही टाइप का एक पढ़ने वाले हैं, इसका कंडीशनल फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एल्स इफ एंड इफ स्टेटमेंट्स। उसको कहते हैं स्विच। वो हम लोग पहले पढ़ लें, बस रिवाइज करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड एक ऑपरेटर का नाम है, उसको एंड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, रिवाइज कर रहे हैं बस बेसिकली। और इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी, कितने टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हमने सब अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो विदाउट नी फॉर ड्यू आप जिस जगह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इस चैनल में ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। सो या टर्न दैट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन करें। सो कैन वी मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो? ऑलराइट, so open your codeacademy.com and let's come to this very review wala thing, right? Okay, kids, what was that? Was scary, whatever. I'm very scary, easily scared kid. So whatever, let's start reading. Okay, first of all we're gonna read this here written. This is the code editor, this is the console panel where we type in things and we get the output here. Whatever, let's start reading. So we're doing the review. Way to go. Here are some of the major concepts for conditionals. All right, an if statement checks a condition and will execute if that condition evaluates to true. And before even saying कि we are starting our if statement or else if statement or any type of operator or any damn thing, ठीक है, we need to first assign a variable. We need to use the equal to sign first. Now, how do we assign variables? We assign variables or create variables using the let keyword. So you'll see the let keyword, or you can use var keyword, or you can even use const keyword. Let's see, we are using the let keyword. All right, everybody, and we'll name our variable, let's say our variable. All right, we named our variable using the camel case style of writing the variable name. Okay, this is the camel case style of writing, and we will set it to a true value, which is, let's say, our name. All right, my name, not our name. Sadaf is my name, right? So I'm really happy. So we'll move forward. What will we be doing? Moving forward. Not. Now we will be creating an if statement. How do we create a statement? We are revising, right? So type in if, then we type in our brackets or say parenthesis. All right, inside this parenthesis, what do we have? We have our expression, we have our variable with condition. Basically this here, inside this we have a conditional. Basically inside this you write a condition. For example, here we write in our variable is if only and only strictly equal to. This is the strictly equal to sign. What strictly equal to means? Basically three equal to signs. All right, what does it do? It actually checks for that whether the value matches. It will first compare the value and then it will check the type. What is the value here? We have SADF, these 5 characters, and what is the type? It's a string, or say it's a text. All right, so we will set it to our name only, right? You can use single quotes or double quotes, it doesn't even matters in JavaScript. All right, then after this, what we have defined our condition is our curly brackets, and inside this curly bracket we have our block code. Here our block code start. So here we'll write our first expression, or first expression, or say our first statement, console dot log, and we'll type in I am your teacher. Yes, I am your teacher. Let's write it. Yes, I am your teacher. All right. Yes, I am your teacher. No, it's not exclamation. Yes, I am your teacher. All right. Can we end this? Let's press Control Enter to run this very code. So did we get an output? Wow, yeah, we got an output. How did we get this output? Because this very code is
true. Okay, sorry, this very conditional is true, right? It compared its value and it found, yeah, value is also matching and the type is also matching. All right, now we'll move. Acha, what if we just make it a false? Let's straight away write it false. All right, we can make it false or we can use falsy values. Both the output would be no output. There is no output. Why there is no output? Because this very condition becomes false, right? This very conditional becomes false, right? This very conditional becomes false, right? This will make it true again. Let's set it to true only. So we got an output. Where did the output go? Yeah. All right, now true is not a data type, but I can set the only. Oh god damn it. All right, so we got an output. Now here it says if else statements make binary decisions, execute different code blocks based on the provided condition. So basically it is saying when we have if and else statement, we need to define the else statement. Okay kids, so we'll type in else. Achha, one more thing about else statements is there is no bracket, kind of thing. All right, we straight away have the else statement and there is no conditional there. This is the default statement, right? And this is the block code of this. If this fails to execute, so this will get executed. So console log, and inside this will say no, I am not your teacher, right? So let's see, when you press enter, so yes, I am your teacher is getting executed. Why? Because it's a true value here. What if we change it to a false value? Let's say we type in X. So no, I am not your teacher. So whoever this X person is, not your teacher. If you type in my name, no, yes, I am your teacher, so it's getting executed. You see, so basically we get these if and else statement are like binary conditions. Like binary means, how to say, binary means two. It's either if it is true or either it would be what? False. If it is true, then if statement gets executed. If it is false, then the default else statement gets executed. All right, now we can even add one more. If you want to add more sophistication or more layer of logic to your code, want to make it more complex, for more sophisticated results execution, we can very well add any number of else if statement. What do I mean by that? Here else if, okay, and here we'll use some brackets and we'll say r variable strictly equal to, let's name someone else, let's name Mehtab. All right, let's name this person Mehtab. All right, and inside this we will write our block code and we will execute. And one more thing, you see here this very statement, at the end of very statement write the semicolon sign. It's a very good practice. All right, console.log, and inside this we will write what? We'll write our block code, our variables name, our text, if Mehtab is true. Yes, yeah, how to say Mehtab? If you type in Mehtab, we must give some message about Mehtab. He is your ex teacher. He used to teach you. All right, so let's fix this. We got, see, do you see? Achha, can you see one thing, that if statements and else if statements both have this conditional wala thing, this bracket wala thing, but else statement is default statement. There is no there is no conditional. We put the semicolon and we put in enter. So what if we type in Mehtab there? Mehtab. So he is your ex teacher. So we got an output. Basically this became false and this became true, and this last wala thing, else statement, got ignored by the computer. Achha, can we add more else if statement? Yeah, we can add any number of else if statement. Here the else if statements block code ends, so from here only you need to start writing else if,
and here we'll type in we need to type in our variable's name. Our variable is our variable name, our variable, and we strictly equal it to, let's say, another name, Jisoo. We'll name it to someone else, you know, we set it to Jisoo. So we will console an output for this, console.log, and inside this we'll type in our code. He is your ex maths teacher, sorry, maths teacher. Alright, he's your ex maths teacher. Alright, so the basic idea I'm trying to, let's run this. Oh no, we need to change it to math we need to set it to Jisoo. Let's see what the heck happened. Okay, I think we made a mistake somewhere. Did we? console.log our variable vari. अच्छा बच्चे, यहाँ पे made a mistake. So we type in Jisoo. So we made a typo in typing our variable's name. So okay, थोड़ा सा गलती हो गया in the spelling. So he is your ex maths teacher. Can you see here? Even you can add one more. You can add infinite number of what else if statements, but there in a code there would be one if statement and one else statement. ठीक है? All right. If and else statement act as a binary what? Acts as a binary decision execution. ठीक है? If and else. But when you add else if statement, so it becomes more dynamic. We can add more and more logic to our code after this. Got it? All right. So we can add one more if else statement if you want to. Okay, this is the else statement, this is the default statement. Okay bacha, can you move forward? It's easy. We can add more conditions using the else if statements. Okay, because else if statements take conditionals. All right, so you can add more conditions using that. अच्छा बच्चा लोग, now we are going to study the comparison operators. ठीक है, now what are comparison operators? I think yeah, we have comparison operators here. Where did they go? Here. Acha, can you just guys tell me a difference between this equal to sign and this equal to sign and this equal to sign? The thing is, this equal to sign, basically you consider it, this is only used when you are defining a variable. This is used to assign a thing, but in order to compare to, you know, operands, or what did I just do? In order to compare just two operands, we need to use this moderately equal to and strictly equal to. These two are comparison operators. This one is an assignment operator. So what are we going to study today? मतलब what are we going to revise today? We are going to revise comparison operators. क्या इसमें equal to का sign होगा? Of course इसके सिंगली equal to का sign exist करेगा? नहीं, इसमें दो equal to exist करेगा, you know, दो equal to exist करेगा. फिर नीचे लाऊं, if I bring you down, so you will see there are three equal to signs, you know, यहाँ पे logical not and everything. Basically comparison operators compares two values, all right, and assignment operator, that is equal to ka sign, assigns something to a variable. All right, so assign some data type to a variable or say some value to a variable. First is less than, all right, another is greater than, and this one is less than equal to. अच्छा, basically the thing is less than equal to is kind of thing, you know, अगर ना if one of the value is value is just equal ना, I mean how to say, ये वाला पार्ट भी सही हो गया, ठीक है, कि इक्वल है तो भी हम लोग का जो वैल्यू है वो ट्रू थी, कंडीशन जो है बूलियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रू आएगा, ठीक है, या फिर इक्वल ना हो के वो क्या है, बड़ा है राइट साइड वाला चीज़, तो अर्थ है उतना तक भी है, तब भी हम लोग को पूरा ओवरऑल कंडीशन जो है ना वो एग्जीक्यूट मार जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो कंडीशनल है वो ट्रूथ ही आया है. क्लियर है? क्लियर नहीं है तो पुराना वीडियोस देख लो बच्चे लोग, हम इतना डीपली नहीं कर सकते ना अभी. और यहाँ पे क्या है कि वैसी टाइप का कि इक्वल टू है तो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है तो, और उल्टा इक्वल ना हो कि छोटा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तब भी एग्जीक्यूट मार जाएगा. दोनों सही होगा तब भी ट्रूथ ही होगा, यू नो, दोनों में से एक भी, इन दोनों में से एक भी सही होगा तो भी ट्रूथ ही होगा. क्या दोनों गलत होगा तो ट्रूथ होगा? नहीं, दोनों गलत होगा तो फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी कंडीशन हो जाएगा बुलियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है.
अच्छा इक्वल टू, ये कंपेयर करता है क्या, ये बस कंपेयर करता है वैल्यू। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आई विल शो यू। यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है दिखा देता हूँ। देखो मैंने लेट कीवर्ड का यूज़ किया, ना कल्लू क्यों हो गया, व्हाटएवर। लेट कीवर्ड का यूज़ किया, हम लोगों ने एक वेरिएबल का नाम डिफाइन किया, हम लोगों ने लिखा कार, राइट, एंड विल सेट इट टू, लेट्स से हम लोग स्ट्रिंग्स में लिख रहे हैं नंबर को, ठीक है 5, ठीक है। तो हम लोग एक कंडीशनल लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन को कैसे लिखें हम लोग ट्रूथ ही है कि फॉल्स ही है उसको चेक करेंगे, ठीक है। ट्रूथ ही है कि फॉल्स ही उसको कैसे चेक करते हैं, टाइप ऑफ लिखते हैं, टाइप ऑफ से तो बूलियन पता चलेगा। ट्रूथ ही है कि फॉल्स ही है वो हम लोग को कंडीशनल से ही पता चलेगा। तो लोग इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग अपना कार नाम का जो वेरिएबल उसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बस ये लिखते हैं और सिंपलीफाई लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर में ना एक लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और अंदर में लिखते हैं कि स्ट्रिंग 5 was read by computer as simply number 5, right? Okay बच्चा लोग थोड़ा सा ना कोड्स को थोड़ा सा चेंज, ठीक है। अब एंटर करते हैं। ये एन क्यों आ रहा है, इस स्टेटमेंट, रुक जाओ मैं ना क्या करता हूँ यहाँ पे ना, अच्छा बैकवर्ड स्लैश लगता है, चलो जो ट्राई कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा रुक जाओ, आप बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, राइट। ये क्या कर दिया मैंने, अबे यार, माई हेड इज एकिंग नाउ, ठीक है। तो व्हाट इज आवर आउटपुट, स्ट्रिंग 5 was read as simply 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 as number 5. I struggled here somewhere. ऑलराइट नो प्रॉब्लम। द थिंग इज हम लोग बेसिकली ना इक्वल टू साइन क्या करता है ना, ये टू इक्वल टू साइन जो है इसका क्या नाम रखा गया है, इसमें इक्वल टू रखा गया सिंपली। बट ये बेसिकली क्या कहते हैं इसको, मॉडरेटली इक्वल, क्या बोलते हैं मॉडरेटली इक्वल, ये मॉडरेटली चेक करता है। अच्छा आप स्ट्रिंग लिखे हो, अच्छा आप स्ट्रिंग लिखे हो 5 को यहाँ पे लिखे हो, तो कंप्यूटर क्या रीड करता है, ये स्ट्रिंग्स को हटा देता है और सिंपली 5 को रीड करता है। इसी वजह से ये वाला कंडीशनल ट्रू होता है। लेकिन ये पे अपना स्ट्रिक्टली इक्वल कर दो ना, देखो देयर इज़ नो आउटपुट। पता है क्यों, कोई आउटपुट ही नहीं आया, बताएगा कोई क्यों? और ये क्या कर दिया मैंने, पता है क्यों नहीं कोई आउटपुट आया? क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया है। सॉरी, ये वाला जो है ना, ये वाला कंडीशन ये फॉल्स कंडीशन है, दैट इज़ व्हाई डिडंट गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब बस एक गायब कर दो तो क्या कहता है, मॉडरेटली चेक करने लगता है, इस वजह से वो कंडीशन ट्रू हो जाता है। देख रहे हो, इसलिए एग्जीक्यूट कर रहा है अंदर का कोड। ठीक है, बहुत अच्छा, होपफुली समझ में आओ। नॉट इक्वल टू क्या करता है, अच्छा क्वेश्चन है कि नॉट इक्वल टू क्या करता है। नॉट इक्वल टू चेक करता है कि जैसे कि ना मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखता हूँ, मतलब सिंपली नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन, ठीक है, ये मॉडरेटली नॉट इक्वल टू। अच्छा, क्या आप ये बात बोल सकते हो कि ये वाला जो कंडीशन है ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या ये मॉडरेटली नॉट इक्वल टू 5 है? ये फॉल्स है, क्योंकि ये मॉडरेटली इक्वल टू 5 है ना, समझ रहे हो, ये मॉडरेटली इक्वल टू 5 है क्योंकि कार का जो वैल्यू है वो तो 5 है। ये कोई और बात है कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी है साथ में, इसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये है कि इसने मॉडरेटली चेक किया, ये बस पूछ रहा है कि कार का क्या वैल्यू एटलीस्ट 5 है, तो बोले हाँ। अब फिर आपको यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेशन लगा दो, क्या कार का क्या सिर्फ वैल्यू भी 5 नहीं है, तो ये गलत है ना, तो ये पूरा ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। इसी वजह से ये वाला जो कंडीशन है ना बच्चा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर उसको स्ट्रिक्टली इक्वल बोल दूँ तो क्या आपको सेंस बन रही है बात?
देखना ये वाला पार्ट ना एग्जीक्यूट कर जाएगा बच्चा। देखो नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर गया क्योंकि ये कंडीशनल ट्रू हो गया, इसी वजह से ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। बट ये ट्रू कैसे है, ये तो फॉल्स फॉल्स लग रहा है, तो एक्सक्लेमेशन का साइन है। बहुत अच्छी बात है बच्चा। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या कार का जो वैल्यू है ना, क्या वो पूरा स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू 5 है। मतलब अरे पूछ रहा है कि कार का वैल्यू जो है क्या उसका वैल्यू सेम है। बोलते हैं हाँ वैल्यू तो सेम है। क्या उसका टाइप भी सेम है। नहीं उसका टाइप तो सेम नहीं, ये तो टेक्स्ट है और ये सिंपली नंबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सक्लेमेशन लगा देने से क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं। अच्छा तो ओवरऑल क्या हो गया, ये समझ रहे हो, ओवरऑल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ए सॉरी, हाँ ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो गया। ठीक है, व्हेन यू विल डू दिस क्वेश्चन ना देन यू विल कम टू नो। मैं कितना भी समझा लूँ आपको नहीं क्लियर होगा, आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया इक्वल नॉट इक्वल टू का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चा, हम लोग अब नीचे आते हैं। स्ट्रिक्टली इक्वल मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेक करता है स्ट्रिक्टली इक्वल। सबसे पहले तो चेक करेगा वैल्यू, फिर जाएगा टाइप में। ठीक है, दोनों को चेक करेगा, पहला वैल्यू फिर टाइप। और नॉट इक्वल टू में ये भाई चेक करेगा कि वैल्यू और टाइप। ठीक है, अगर पहले था तो वो ना हो जाएगा, अगर पहले नहीं था तो वो हाँ हो जाएगा। ऑलराइट, चिल अबाउट दैट, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोगों ने कवर कर लिया, ये वाला पूरा कवर हो गया ना बच्चे लोग, वेरी गुड। अच्छा हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसमें लॉजिकल अलग है एंड अलग है। ध्यान से देखो बच्चा, लॉजिकल एंड, ये पूरा नाम ही है लॉजिकल एंड, इसको आप भूल जाओ, ये तो उसका सिंबल है। लॉजिकल एंड कहते हैं इसको, एंड, लॉजिकल एंड, ये पूरा एक नाम है। ठीक है, क्या लॉजिकल एंड पूरा नाम है? हाँ, यहाँ देख के अजीब सा लग रहा है ना, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। बिल्कुल, इस ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल एंड। एंड, AND, एंड का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है ना, समझ रहे हो। और सिंपली एंड चेक्स बोथ प्रोवाइडेड एक्सप्रेशंस आर ट्रूथी। ऑल राइट, नाउ व्हाट डज दिस मीन बच्चा कि अच्छा बच्चा, मैं अगर ना यहाँ से इफ़ स्टेटमेंट को ही ध्यान दूँ, मैं सबको उड़ा दूँ। ठीक है बच्चा, और मैं ना इसको मैं ना नाचूंगी, अरे सो ओके। तो हम लोग को पहला कंडीशन है ये, क्या इतना क्लियर है सबको? क्या उसमें मैंने एक दूसरा कंडीशन में ऐड कर दूँ? ठीक है, अगर मैं दूसरा कंडीशन ऐड करता हूँ कि आर वेरिएबल, ओ भाई साहब, आर वेरिएबल, व्हाट द फक इज, सॉरी आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। आर वेरिएबल जो है ना किड्स, हम सॉरी थे, स्ट्रिक्टली इक्वल टू जीसू। ठीक है, अब देखो आउटपुट, देखो आउटपुट हो ही नहीं रहा, पता क्यों? क्योंकि ओवरऑल फॉल्स हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। अच्छा, इसी की जगह मैं अगर ना लॉजिकल एंड की जगह मैं यहाँ पे लगाऊँ लॉजिकल ऑपरेटर, सिंपली द लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेटर, सिंपली द लॉजिकल कहते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हो बार्स। ठीक है, बार्स। पता है इससे क्या होगा? इसमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगा ना किड्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो देखो ये वाला वैल्यू ट्रू था, इस वजह से सॉरी, ये वाला जो वैल्यू था ये ट्रू था, इसी वजह से ये एग्जीक्यूट कर गया। क्लियर है किड्स? ऑलराइट। लेकिन एंड के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि एंड जो है ना बच्चे लोग, दोनों को चेक करता है। कहाँ गया? दोनों को चेक करता है। फिर आप बोलोगे कि सर कोई ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कंडीशनल लिख के दिखाओ जिसमें कम से कम ये ट्रू तो हो। अच्छा ठीक है, क्या हम लोग इसको इक्वल टू ट्रू लिखते हैं? क्या एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? सॉरी, कंपेयर करना चाहिए मेरे साथ। देखो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कैसे लिखें इसको? तो फिर दोनों कंडीशनल ट्रू होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ना कोई नंबर लेते हैं बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे आर वेरिएबल की जगह हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे, लिखते हैं इफ स्टेटमेंट गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, क्लियर हुआ आपको? क्या आर वेरिएबल को हम लोग ने सदफ असाइन कर दिया है, बट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो आर वेरिएबल हम लोग ना बच्चा 5 लिखते हैं। ठीक है, पहले की तरह। क्या इसका वैल्यू 5 है, बट डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है,
तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं 5 लिख देते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग ना यहाँ पे बच्चा कंपेयर करेंगे आर वेरिएबल आर, व्हाई डू आई डू दिस, आर वेरिएबल। क्या आप लोग हैप्पी हो बच्चा? लाइफ में बच्चा ऐसे सैड रहता है, रहने वाला है, लेकिन आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। बस हम लोग को सिंपली कंपेयर करना है, क्या इसका वैल्यू सेम है? ऑफ कोर्स इसका वैल्यू सेम है, तो नहीं ये वाला कंडीशन में जो पार्ट है ये भी ट्रू है, ये वाला भी कंडीशन का पार्ट ट्रू है, तो ये ओवरऑल ट्रू होना चाहिए। लेट्स सी इफ दिस गेट्स एग्जीक्यूटेड और नॉट। तो बेसिकली देख रहे हो द इफ स्टेटमेंट गॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि दोनों ट्रू है। क्या हम लोगों ने एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके दोनों को ट्रू कर दिया? बिल्कुल। अच्छा बच्चा, बैंग ऑपरेटर क्या करता है पता है बच्चा? अगर उसमें ना बैंग ऑपरेटर में अपना ट्रू वैल्यू पुट करते हो तो आउटपुट आएगा फॉल्स वैल्यू। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि अच्छा यहाँ पे रुक जाओ। तो यहाँ पे ना बच्चा मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है? हम लोग ना, ठीक है 10 नंबर लिख दिया मैंने। हम लोगों ने एक हम लोगों ने बच्चा अपना यहाँ पे ना 10 लिख देते हैं। रुक जाओ, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? बस खुश रहा करो, लाइफ इज़ वेरी मतलब ही, ठीक है? जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी एवरीबडी, ठीक है बच्चा? तो हम लोगों ने लिखा आर वेरिएबल, राइट, और हम लोगों ने क्या किया इसको हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इक्वल लिख दो, ठीक है? स्ट्रिक्टली इक्वल टू 10, जो एक ट्रू वैल्यू है, राइट? और अगर हम लोग अभी एंटर दाबते हैं तो हम लोग का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर आप सडनली ना बच्चा इसके सामने में बैंग ऑपरेटर डाल दो, देखो कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। पता है क्यों? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इस बैंग ऑपरेटर ने फॉल्स कर दिया। क्योंकि इसका जो वैल्यू था वो ट्रू था, ठीक है? अगर बैंग लगा देते तो वो क्या करता है, स्विच कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, इसी वजह से ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। अच्छा बच्चा, अगर मैं यहाँ पे कोई फॉल्स वैल्यू लूँ, लेट्स से वी सेट इट टू 20, जो हम लोग का कभी भी लाइफ टाइम में नहीं आएगा 20, तो 10 है ना, कैसे करेगा कंपेयर? ठीक, मॉडरेटली भी इक्वल नहीं है, इसका तो वैल्यू ही डिफरेंट है, 20 या 10 है हम लोग का वेरिएबल। तो ये क्या होना चाहिए? अभी ऐसे अगर मैं एक्सक्लेमेशन साइन हटा दूँ तो अभी तो एग्जीक्यूट कभी नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं एक्सक्लेमेशन साइन लगाऊंगा ना बच्चों, तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। व्हाई डिडंट इट गेट कन्वर्ट? ये तो अलग बात है बच्चा, क्या हम लोग का कुछ मिस हो गया? सो लेट्स सेट इट टू, आई थिंक हम लोग को ये वाला साइन शायद बाहर लगाना चाहिए, आई गेस सो। नहीं यार, अच्छा बच्चा मेरे को एक सेकंड का पॉज देना, आई थिंक आई एम हैविंग सम कॉन्सेप्ट इश्यूज। कॉन्सेप्ट का क्या बोलते हैं उसको? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कॉन्सेप्ट्स में। आई एम जस्ट कमिंग बैक, ऑलराइट? जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सो बेसिकली हम लोग सही थे, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा चीज़ कुछ मिस कर जा रहे थे कि यहाँ पे ना बच्चे लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग को एक और ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग को ब्रैकेट कंडीशन के बाहर भी एक ऑपरेटर, कंडीशन का जो स्पेस दिया है ना, पेरेंथेसिस, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन दे के then we need to put in our condition or expression whatever you call it inside the bracket, तब होगा। चल बच्चा फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो अभी ना ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो क्या ये कभी भी लाइफ टाइम में ट्रू लग रहा है कि आवर वेरिएबल मॉडरेटली इक्वल टू इवन 20? नहीं ना यार, वैल्यू ही सेम नहीं है, तो ये फॉल्स है। बट जैसे हमने उसको ब्रैकेट में डाल के बाहर में ये वाला एक्सक्लेमेशन का साइन डालते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है ना बच्चा लो, ये हो जाता है ट्रू। इस वजह से ये इनसाइड द कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया ना? उसके बाद बच्चा हम लोग बैंग पढ़ लिए, बैंग ऑपरेटर बच्चा। उसके बाद हम लोग ना टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चा, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या करते हैं यहाँ पे? टर्नरी ऑपरेटर इज द शॉर्ट हैंड और सिंप्लीफाई द कंसाइज द इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट बच्चा? तो ना इसके लिए भी हम लोग को लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड आई थिंक हम लोग को सबसे पहले अपना जो फर्स्ट कंडीशन है, जैसे कि आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, ठीक है? और वेरिएबल इसको देते हैं मॉडरेटली इक्वल टू लेट्स से 20। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन मार्क देना है। उसके बाद हम लोग को जो आउटपुट चाहते हैं वो लिखना है, तो लिख देते हैं इसको कि console डॉट लॉग। उसके बाद क्या लिखना है बच्चा? console लॉग के अंदर बच्चा क्या लिखना है? हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग का आउटपुट आए अगर ये ट्रू हो, ठीक है, जब मॉडरेटली ट्रू। सो we are assured that our variable, अच्छा लोग ठीक लग रहा है ना आप लोग को? वेरिएबल हैज़
आ वैल्यू इक्वल टू 20। ठीक है। अच्छा बच्चा, मैं ना उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, उसके बाद ना इसमें ये लिखना पड़ता है, अच्छा सॉरी, इसके अंदर आप लोग को ये लिखना पड़ता है, ये कोलोन का साइन। ठीक है बच्चा। डिड आई मिस समथिंग? आई डोंट थिंक आई मिस समथिंग। उसके बाद बच्चा यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको वो वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जो आपका फॉल्स हो जाए, मतलब तब एग्जीक्यूट हो जब ये फॉल्स हो। क्या मैं पे लिख दूँ? सो वैल्यू डजंट मैच। ऑलराइट, सो वी आर एश्योर दैट आवर वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू ऑफ 20। क्लियर हो गया ना बच्चा कि ना ये बेसिकली चीज़ों को ईजी कर देता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े थे स्विच स्टेटमेंट। बच्चा अब लास्ट में ना स्विच स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा रुक जाओ ना, एक बार टर्नरी ऑपरेटर का ना हम लोग ये देख लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का ये टेम्पलेट कैसा है, बेसिकली इसको लिखते कैसे हैं। टर्नरी ऑपरेटर इन जॉस यस। सो हम लोग इमेजेस देख लेते हैं बच्चा। ठीक है, और रिवाइज कर लेंगे ना, हो जाएगा इजी। देखो बच्चा, जैसे कि हम लोग फर्स्ट एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं ना बच्चा, ये क्या करा हुआ है इसने। देखो बच्चा, पहला हम लोग का कंडीशनल होगा, उसके बाद एक्स पहला वाला स्टेटमेंट, फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है ना। वही किया हम लोगों ने बाइनरी आउटपुट के लिए। आप लोग चाहो तो मतलब आप डायनेमिक आउटपुट भी ला सकते हो। कैसे? और स्टेटमेंट्स ऐड करके मैं दिखाता हूँ कैसे। स्विच स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को मैच कर दे इसमें। मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने वीडियो में कवर कर लिया बच्चा, उसको आप देख लो ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना बच्चा। चलो मैं इरेज कर दूँ उसको। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो सर 1 सेकंड पॉज लूँगा बच्चा, थोड़ा सा थक गया हूँ। वेलकम बैक बच्चों। राइट, लेट्स चिल। तो बच्चा स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए भी ना बच्चे लोग हम लोग को एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आवर वेरिएबल को जैसा का तैसा छोड़ दिया है। ठीक है बच्चा, स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को स्विच SWIT स्विच जो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में प्रेजेंट, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा बच्चा, स्विच स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, किसी को कोई आइडिया? क्या सीधा कंडीशनल लिख दें? क्या हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं? हाँ बच्चा, तो हम लोग यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग अपना एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? आर वेरिएबल। हाँ बच्चा, आर वेरिएबल, ये हम लोग का क्या है? कंडीशन है, मतलब एक्सप्रेशन है हम लोग का वेरिएबल। ठीक है बच्चा, क्या उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते हैं? हाँ बच्चा, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। उसका इसी ब्लॉक के अंदर बच्चा ना बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ना बच्चा केस 1 लिखते हैं। पहला केस मानते हैं कि अच्छा, इसको वेरिएबल की जगह ना कुछ और नाम लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं हम लोग सदफ। अगेन वापस से सदफ, क्या लिख देना है? हाँ सदफ। तो पहला केस लिखते हैं SADF, सदफ। ठीक है, और बच्चा सदफ लिखने के बाद आपको पता है क्या करना पड़ता है? बिल्कुल S2 का साइन देना है। ठीक है बच्चा, उसके बाद यहाँ पे नीचे में पता है क्या आएगा बच्चा? यहाँ पे आएगा console डॉट लॉग बच्चा। उसके बाद ब्रैकेट में आप क्या चाहते हो जब सदफ आए मैच कर जाए तो? सो हिज नेम इज सदफ। राइट, तो हम लोग का ये आउटपुट हम लोग चाहते हैं बच्चा। ठीक है, इसको हम लोग एंड कर दिए। क्या यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का भी इस्तेमाल होगा? बिल्कुल, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चा, मतलब अगर ये मैच कर जाता है ना यहाँ तक, तो ये ज़्यादा एग्जीक्यूट ना मार जाए, यहीं पे रुक जाए, इसी वजह से हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्या हो गया? क्या हम लोग कुछ गलती कर दिया? क्या हो गया भाई? हैं? क्या गलती कर दिया भाई? ओके 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 बच्चा, यहाँ पे हम लोग ना ये नहीं लिखा है, सॉरी मेरा गलती है बच्चा। इसको हम लोग को टेक्स्ट लिखना है ना, पता नहीं हम लोग ने क्या लिख के छोड़ दिया इसको। अब बच्चा देखो, अब ना एग्जीक्यूट हो गया, समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग ना केस 2 लिखते हैं बच्चा। ठीक है, केस 2 में हम लोग नाम देते हैं जीसू। राइट, हम लोग का फेवरेट कीवर्ड सब जीसू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? केस 2 का इसका कंसोल आउटपुट, कंसोल लिखेंगे। सो हिज नेम इज़ जीसू रहमान। ठीक है, ऑलराइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? से ब्रेक। अच्छा बच्चा, ठीक, ब्रेक।
ऑलराइट बच्चा लोग, अच्छा आई लव यू, आई रियली लव यू किड्स, यू आर जस्ट सो गुड, आई एम हैप्पी विथ यू. You know, my life kind of sucks nowadays, but I think I'll come out of it, right? No one fucking cares, it feels like. Or maybe I just want to make, I don't know. Oh, let's come back. Why I'm saying my दुखरा कहानी to you. अच्छा बच्चा, क्या हम लोग केस 3 भी लिखते हैं? ऐसे ही करते करते केस 3 भी लिख देते हैं इसको. क्या मेहताब उनका फेवरेट नाम से. आपको मैं स्टोरी बताऊंगा, मेहताब जीसू लोग कौन है, क्या ये मेरे दोस्त हैं या कौन है, आपको बताऊंगा. ठीक है. सो he teaches physics, right? This is the output of physics execution. ठीक है बच्चा, क्लियर है ना बच्चा. तो हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, हो गया ब्रेक. ठीक है. क्या क्या स्टेट हुआ, सदफ. सदफ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे जीसू लिखते हैं. सॉरी बच्चा, कैपिटल एस होना चाहिए, राइट, कैपिटल जे होना चाहिए, जीसू. सो हिज नेम इज जीसू रहमान. बच्चा हम लोग उसको चेंज करके ना मेहताब कर देते हैं. क्या वो समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रही है बच्चा? देखो मेहताब, सो इज फिजिक्स, ही सो ही टीचर्स फिजिक्स. क्या बच्चा, अभी हम लोग कुछ अलग नाम लिखते हैं, जैसे कि अकबर लिखते हैं, तो देर इज़ नथिंग अबाउट अकबर. ठीक है. तो हम लोग ना एक लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, DFAUL, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ऐसे टाइप के नामों के लिए, यू नो, जहाँ पे कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है. दैट इज़ सो सैड फॉर आवर, यू नो, फॉर अस. तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखते हैं किड्स. ऑलराइट बच्चा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में ना बच्चा कोई यही नहीं होता है, मतलब क्या नहीं होता है, कोई भी कंडीशनल नहीं होता. जैसे यहाँ पे कंडीशनल कंपेयर करता है ना, मेहताब को जो वैल्यू है इसके वैल्यू से कंपेयर करता है. यहाँ पे किसी से कुछ कंपेयर नहीं करेगा. सब आप फॉल्स हो गए ऊपर के, तो मैं डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट को क्या करूँगा, एग्जीक्यूट मार दूंगा. कंसोल बच्चा समझ में आ रहा है. लॉग, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, अननोन नेम, नो डेटा. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या चाहेंगे आखिर में, सेमीकोलन, फिर लिखेंगे ब्रेक नाम का कीवर्ड, एंड विल एंड दिस. अननोन नेम, अकबर इज़ अननोन नेम. आपको बता दो कुछ किसी और का लिखते हैं जैक इज़ एन अननोन नेम, नो डेटा. लेकिन जैसे मैं सदफ लिखता हूँ बच्चा, क्या ये अननोन नेम, क्योंकि कैपिटल एस लिखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है ना बच्चा. सदफ, सो हिज नेम इज सदफ. दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया ना बच्चा. सब चीज़ हम लोग इजीली कवर कर चुके हैं. आई विल नॉट गिव मोर टाइम इन दिस, इट इज़ डन. ऑलराइट, लेट्स सी हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या पढ़ने वाले हैं. ये वाला वीडियो भी ना बच्चा प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा मैं, आप टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो. देख रहे हैं क्या खुल रहा है. हम सॉरी, रुक जाओ. ओह, हम लोग शायद एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा. मैजिक 8 बॉल नाम का एक 8 बॉल, ये कोई गेम है क्या 8 बॉल? एक साथ सर्च कर लूँ, थोड़ा सा टाइम लगे आप लोग का. 8 बॉल, हाँ ये वाला गेम होता है ना 8 बॉल, बहुत फेमस गेम है, राइट. ऑलराइट, दैट इज़ नॉट द थिंग. द थिंग इज़ आप लोगों ने इतना दूर तक फॉलो किया, तो आई लव यू इतना तक फॉलो करने के लिए. एंड प्लीज़, यू नो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ना बच्चा, थोड़ा सा लाइक मार दो. कोई कमेंट लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो. एंड या तो बेसिकली ये वाला वीडियो भी ऐड हो जाएगा हम लोग को जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में, एंड यू कैन लेटर ऑन एंजॉय ऑल ऑफ दिस. ये कोर्स को आप कर सकते हो. सो फॉर नाउ आई वुड जस्ट टेक अलविदा फ्रॉम यू. कैच यू सून. ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय, बी सेफ.